So I have created a new class called display series, and in this we will have to display this series 1, then 1, 2 times 1, then comma 3 times 1, then 4 times 1, वो क्या कर रहा like है? this. बगल में Okay, क्या है? so we have to display this series. Nitin, Hare Krishna. Hare Krishna very. Gopal is there. Gopal कहाँ है? Roji is coming. Okay. Why all of you are not there in previous 2 classes? What Roji? जो पिछली 2 क्लासेस में नहीं थे तुम लोग क्यों? पता नहीं. The assignments which I gave, did you receive the assignments? No Roji. तो प्रभु जी. Okay. So we are doing this problem. We have to display this series 1, then 1 comma 1. All of you are seeing the screen? And this like this. So I have created this class, public class display series. Other things I'll just remove. So first we'll create main function, okay? Public static Class void main string. main string args. Now here we'll start. So first we'll ask the user how many terms, user को कितने terms तक print करना है. तो first we'll ask the user. So we'll write system dot out dot print ln, String. then enter the number of terms. Enter the Yes Roji. number of Number of terms. terms. Okay. After that we will store this number. So let's say n is the number, n is equal to in dot next int. तो हमने देखो सबसे पहले इसका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा because we have input a number. So first we'll create an object scanner in Next. is equal to new Scanner system dot in. system.in. System dot in. Yes Roji. So यूजर हमको बताएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स उसको चाहिए. हमने उसको n में स्टोर कर लिया. किया नहीं. हाँ हमने तो इंपोर्ट नहीं Yes किया. Roji. हाँ import, yes. क्योंकि हमने स्कैनर क्लास यूज किया है तो we have to import the package. Import java dot Java util dot util dot scanner. Okay. asterisk. Asterisk is not required. Asterisk का मतलब कि सारी क्लासेस. So okay.
तो जी आप ये किसका प्रोग्राम बना रहे हो? हमको ये जो सीरीज है ये प्रिंट Series. करनी है 1 then 1 comma 1 1 then 3 times 1 4 times 1 like this. Okay. और ये स्कैनर का मतलब क्या है? Yes, sir. इसका स्कैनर स्कैनर हाँ स्कैनर का मतलब नहीं पता? कौन है पूछ रहा है? अरे नहीं, जो आपने इंपोर्ट जावा डाला है ये इसका मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये ऊपर में देखो, ये अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लगाते, ओके, UTIL क्या है? व्हाट इज UTIL? पैकेज। UTIL इज पैकेज। सो UTIL के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसको हम Yes. यूज करते हैं, पर हमको यहाँ पे केवल स्कैनर क्लास का यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एस्ट्रिक न लगा के केवल स्कैनर लिख दिया था। ओके, मींस दैट वी आर इंपोर्टिंग दिस स्कैनर क्लास। तो जी अगर हम एस्ट्रिक लगाएं तो गलत हो जाएगा? एस्ट्रिक लगाएं तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, एस्ट्रिक से भी सही होगा, but we don't need all the classes of UTIL package, Yes. just need the scanner. If you put asterisk, then also it is all right, it is not wrong. Okay, so user ने हमको n number of terms दे दिए. Now we will make the program to print this n number of terms. So first we'll make a loop for int I is equal to 1, I less than equal to n, then I plus plus. तो इस I loop से this loop will decide number of terms. अब देखो पहले टर्म में कितने 1 है? एक, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। जो 4। तो इस तरह से 3 4 1 की संख्या भी बढ़ रही है, जिस हिसाब से टर्म्स हैं उसी हिसाब से 1 की संख्या बढ़ रही है। तो हम अंदर यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे फॉर int j is equal to 1 and j less than equal to I, j plus plus। अब देखो, जब I की वैल्यू 1 होगी, यानी जब पहला टर्म होगा, तो j कितनी बार चलेगा? 1 2। जब I की वैल्यू 1 होगी तो j कितनी बार चलेगा? 1 बार। 1 बार चलेगा, यानी एक बार 1 प्रिंट करेगा। जब I की वैल्यू 2 होगी तो j चलेगा 1 to 2, 2 बार, यानी 2 बार प्रिंट होगा 1। ठीक है, j की वैल्यू जब 3 होगी तो I की वैल्यू 3 होगी तो j 1 to 3 चलेगा, 3 बार, यानी कि 3 बार 1 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसको प्रिंट कर देंगे। सिस्टम, मुझे ये याद नहीं आ रहा ये इसका मतलब क्या था, ये स्कैनर IN इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसका स्कैनर IN इक्वल टू न्यू स्कैनर। हाँ, ये हमने स्कैनर क्लास को हमको यूज करना है, therefore we have created the object of scanner class IN। इसका तुम कुछ and you can take any name, you can write OB also, scanner OB, then here you have to write OB dot next time। तब तो स्कैनर क्लास यूज करने के लिए से यूज करते हैं। हाँ हाँ, Is it clear? ठीक है। So system dot out print, so we want to print in the same line, okay, so we will not use ln, we will print in the same line। So system dot out print j, then j। प्रभु जी एक बार फिर समझा दो, स्कैनर OB क्यों लिया फिर से इन की जगह पे? हाँ, तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे वेरिएबल तुमको लेना होता है ना, जैसे तुमने लिया int, जी ब्रो जी, चाहे int k लो, चाहे int j लो, नाम तुम अपनी चॉइस पे ले सकते हो ना। हाँ जी। तो उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट का नाम चूज करना होता है
तो वो you अपनी can- मर्जी से ले सकते हैं। हाँ, अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ठीक है। Okay, so here we'll print J. Sorry, we will not print J. Okay, because we have to print 1. So we will print here 1. यहाँ पे हमने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 हो जाएगा। बटन ड्रैग है, हाँ। पेज नहीं देना। And after every term you can see there is a comma. Okay, so after every term we will print a comma. So here I'll write system dot out dot print, then here it will be comma, then a space. Okay, so now we'll here for loop is closed and here main loop is also closed. So you can see for this inner for loop I have not used any bracket. Why? For inner for loop I have not used any bracket. Why? एक ही है प्रोजेक्ट, क्योंकि एक में जरूरी नहीं होता। बिकॉज एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन हमको इसके अंदर रखनी है, therefore we don't need a bracket. Okay, this second line is not inside the inner for loop, it is in outer for loop. Okay, so now we will compile it. So it is showing error because समझ नहीं आया। Okay, I'll explain once more in dry run. Don't worry. So n को हमने डिक्लेयर नहीं किया था। नहीं प्रभु जी, जो आप बोल रहे ना ब्रैकेट नहीं लगाया, वो मतलब वो समझ नहीं आया। अच्छा। So now there is no error. अब देखो जो बता रहे ब्रैकेट नहीं लगाया ना, when there is only one statement inside a loop, then we don't need a bracket. When there are more than one statements, then we need a bracket for that loop. जैसे ये एक्सटर्नल जो आउटर फॉर लूप है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स है, एक तो ये फॉर वाला और एक नीचे वाला आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ा, पर ये जो इनर फॉर लूप है इसके लिए बस यही, इसके अंदर बस यही वाला स्टेटमेंट है, system dot out print 1. Okay, so for this we don't need a bracket, but even if you put a bracket it is not wrong. अगर तुम ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा भी देते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता था। ओके, ठीक है, ठीक है। So now we'll compile this. So you can see there are no errors. So we'll now run it. अरे Can you see the screen? Now it is asking enter the number of terms. So let's say 4. We have entered 4. तो इसने देखो 4 ये प्रिंट कर दिए, 1 1 1 1 then 1 1 1 like this. ठीक है, जितना टर्म नहीं उतने कर देगा। हाँ जितने टर्म्स दोगे। अभी देखो जैसे एक बार मैं और रन करता हूँ इसको, so now how many terms you want? 3 2 7
7. So I enter here value 7. So you can see it has printed 7 terms. प्रभु जी Yes. सर जी एक बार वो जो आपने जे वाला लगाया है ना फॉर लूप उसको एक बार हटा के बता दीजिए कैसे आएगा। जी प्रभु जी कैसे बता दीजिए। ये जे वाला जो है ना फॉर लूप उसको एक बार हटा के दिखा दीजिए क्या होगा इसके बाद। ये जे वाला फॉर लूप। हाँ अच्छा, अगर इसको हटा दूंगा तो ये जो 1 है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये जे के अंदर है। अच्छा तो ये यस। डाउट है, वो फैक्टर वाले में डाउट है, फैक्टर्स निकालने वाले में। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का ए। Okay, the 21A. Find and display all the factors of a number input by the user, including 1 and the number itself. This one, A part, na? So you have to find and display all the factors of a number. So you have to display the factors of a number. So यहाँ पे हमने यूजर से, मैं इसी प्रोग्राम में बना रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टर निकालना। इट इज नॉट फैक्टोरियल। सो हम यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर द नंबर। ओके, यूजर को से हम नंबर मांगेंगे तो यूजर विल गिव द नंबर, वी विल स्टोर द नंबर इन द वेरिएबल n using ob.nextInt. Okay, so now user will enter the number and now we have to find the factors of this number. For example, अगर मान लो नंबर यहाँ पे यूजर ने दिया 10, so what are the factors of 10? 1, 2, 5 and 10. 1, 2, 5 and 10. 1, 2, 5 and 10. Yes. If the number is 15, what are the factors? 1, 3, 5 and 15. 1, 3, 5 5 and 15. Yes. Not 5. So like this. 15. So we have to find the factors of the number. So कैसे factors निकालेंगे, concept क्या है देखो, पहले 115 को 1 से डिवाइड करो, क्या डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो 115 का फैक्टर हो गया ना। फिर अगला नंबर लो, 215 को 2 से डिवाइड करो, क्या डिविजिबल है? नहीं है तो 2 फैक्टर नहीं होगा। फिर अगला नंबर लो 3, क्या डिविजिबल है? है, तो 3 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जहां तक नंबर है, मान लो 15 नंबर है तो 1 to 15 हम सारे नंबर्स चेक कर लेंगे 1 by 1 उसको डिवाइड करके, और जो जिससे डिविजिबिलिटी मिल जाएगी। प्रभु जी इसमें फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के करना है। हाँ, यस। 15 बार लिखना पड़ेगा प्रभु जी इफ एल्स स्टेटमेंट। नो, इसमें विल यूज फॉर लूप। सो हमने यहाँ पे देखो एक ये लूप चला हुआ है 1 to n तक। We don't need internal loop, so we will remove this internal loop. Okay. Now we will put the condition. If n modulus I is equal to 0, हाँ 0 हो जाएगा तो वो नंबर यानी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर इक्वल टू 0 है तो क्या कर दो, उस नंबर को प्रिंट कर दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताओ? फैक्टर प्रिंट होगा। आई, यस। सो यहाँ पे आई प्रिंट होगा। कैसे? क्योंकि अगर देखो n i से डिविजिबल हो जाता है, अगर ये मॉडुलस 0 हो जाता है इसका मतलब i n का फैक्टर हुआ। n मॉडुलस i का क्या मतलब होता है? अगर i n से डिवाइड हो गया
तो अगर नहीं हुआ तो दूसरी। इफ n इज डिविजिबल बाई i, नंबर अगर वो कौस्तुभ भी समझ में आ रहा है? आई प्रभु जी यस, एन की जगह हम कोई नंबर भी रख सकते हैं, जैसे एन मॉडुलस आई लिखा है तो कोई नंबर मॉडुलस आई भी लिख सकते हैं। हाँ कोई नंबर भी लिख सकते हो, पर n तो हमने जनरल मान लिया, जो भी यूजर दे देगा, यूजर कुछ भी दे सकता है, 20, 25, 50, उसकी वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी, फिर वो चेक कर लेगा। ओके, सो if the number is divisible by I, then it will print the value of I. For example, let's say n is equal to 6. Okay, so loop कहां से कहां तक चलेगा? 1 to 6 तक चलेगा, ठीक है? Then it will check n is equal to 6, I की पहली वैल्यू होगी 1, so क्या 6 1 से डिविजिबल है? है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू होगी 2, क्या 6 2 से डिविजिबल है? तो i प्रिंट हो जाएगा 2। फिर i की वैल्यू होगी 3, क्या 6 3 से डिविजिबल है? तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू होगी 4, क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 4 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? फिर i की वैल्यू होगी 5, वो भी प्रिंट नहीं होगा। 6 होगी तो 6 भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने i प्रिंट करके कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया है ऐसे। तो आई थिंक द प्रोग्राम इज डन। ये फिर एल्स भी तो लगाना, एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, else is not required here. हमें तो फैक्टर ही निकालना है बस, ठीक। Yes, so we'll compile this program. So there is one error, I have not put semicolon here. प्रदीप ब्रैकेट के पीछे सेमीकोलन, हाँ, तो semicolon लगा दिया। Now there is no error, so we'll run this program. So it is now, you can, I'll share the screen. Yes, so it is asking enter the number. So let's say we entered the number here 26. Okay, so it has printed the factors 1, 2, 13, 26. Okay. प्रदीप एक बार से उसको दिखाना प्रोग्राम। Yes. प्रदीप Yes. हाँ क्लास क्या डिलीट करता हूँ। क्यूआर क्लास का बच्चा है क्लास में हमारे। कौन है, क्या बोल रहे हो? रोनित अरोरा नाम का कोई और क्लास का बच्चा है प्रो जी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। हु इज रोनित? इफ यू वांट्स टू अटेंड दैट्स ऑल राइट। व्हिच क्लास, किस क्लास का बच्चा है? 11th? ये प्रोजेक्ट फैक्टर निकालने का प्रोग्राम था। हाँ, दिस इज फॉर फैक्टर। Okay, so if there are no other problems, I'll move to next topic. We'll learn how to make programs based on patterns. All these things I have already taught in your class 9. Therefore, I am not going in much detail. This is just for your practice. प्रभु जी हम उस टाइम थे ही नहीं, तो आपने पढ़ा दिया, क्या होगा? तुमको भी पढ़ाया है मैंने। मुझे पैटर्न वाला नहीं समझ आया था। हाँ, पैटर्न वाला मैं बता रहा हूँ ना फिर से। तो कैन यू सी दिस स्क्रीन? अभी कौन सा प्रोग्राम दिख रहा है तुमको? हाँ पैटर्न का है, रिवर्स पैटर्न लिखा हुआ है। पैटर्न, हाँ, तो ये प्रोग्राम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आया था। देखो कितना छोटा प्रोग्राम है, हाउ सिंपल इट इज।
और पैटर्न क्या प्रिंट करना था? 15 मार्क्स का है सही। हाँ 15 मार्क्स का। ओ इसके साथ एक और छोटा सा प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम मिला के ऐसे छोटे छोटे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो ये पैटर्न इस तरह से है। आई विल शो यू द ये का एग्जाम पैटर्न। हुआ ही नहीं है, हाँ, का पेपर तो हुआ ही नहीं है। लास्ट टाइम किसी ईयर में आया था बोर्ड एग्जाम में, नॉट दिस ईयर। 5 4 3 2 1 तो ये हमारी फिजिक्स क्लास आशीष प्रो जी लेंगे कि राधाकांत प्रो जी? फिजिक्स क्लास राधाकांत प्रभु। पर प्रो जी लिखा है एपी हाँ, यानी आशीष प्रो। उसमें गलत लिखा हुआ है। So this is the pattern. Okay, so you see yes sir. it is starting from 5. Every row is starting from 5. Okay, first row has 5 columns, second row has 4 columns, third row has 3 columns, fourth row has 2 columns, and fifth row has 1. तो रेस्ट्रिक्टेड होता है ना पेपर प्रॉब्लम। Yes. So we have created a loop 1 to 5. After that we have created inner loop 5 to I. So you see J को हमने 5 से start किया है because every time the row is starting from 5 and J will run till 1. पहली बार I की वैल्यू 1 होगी, so J will run 5 to 1. ओके, तो 5 to 1 में 5 4 3 2 1 ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार I की वैल्यू 2 होगी, तो J will run 5 to 2, so 5 4 3 2 ये प्रिंट होगा। अच्छा, तीसरी बार I की वैल्यू 3 हो जाएगी, J will run 5 to 3, so 5 4 3 this will be printed. फिर चौथी बार में I की वैल्यू 4 होगी, so J will run 5 to 4. Okay, so 5 और 4 प्रिंट होगा। माइनस कैसे हो रहा है ये? माइनस यहाँ पे J माइनस माइनस लिखा हुआ है, देखो। और फिर अगर ये माइनस अगर आगे कर दे तो क्या होता? माइनस माइनस J करते तो भी चल जाता, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, ये भी चल जाता। yes please. J equal to J minus. Now we compile the program, there are no errors, and we'll now you see मैंने यहाँ पे लिखा है system.out print J plus tab \t। \t का क्या मतलब होता है? स्पेस देगा, स्पेस देना। दो प्रिंटिंग के बीच में स्पेस देता है। एंड आफ्टर दैट आफ्टर इनर फॉर लूप मैंने यहाँ पे केवल ये लिखा है system.out println। इसका क्या काम है? इसका नीचे उतर जाना, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना। दिस इज यूज्ड टू चेंज द लाइन। ln करके चेंज जाता है। ओके, so now we compile it and now we'll run it. Next line. So you can see here ये तो बहुत ज्यादा गैप में आ गया। no problem, that is all right, but our purpose is solved that this is printed in this pattern. अब प्रभु जी वैसा वाला दिखा दो, ऐसा बता दीजिए ऊपर से जो नीचे आएगा, सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा। प्रोग्राम दिखाना।
So this is the program. प्रभु जी ये स्लैश टी है, ये गैप के लिए है। हाँ, \t is for gap. गैप। Where is Gopal? I am not seeing Gopal. गोपाल कहाँ है? प्रदीप वो यहाँ पर नहीं है। क्यों? प्रदीप बाहर गया है। अच्छा, उसको कंप्यूटर नहीं लेना क्या क्लास 10th में? ले रहा है। कंप्लीट हो गया सिलेबस। So अनुराग, what you are saying? सर जी इसका उल्टा बता दीजिए, अभी आपने रिवर्स हाँ। बताया है ना। तो उल्टा देखो, उल्टा Yes, मतलब correct ये है। 1, आई को जे को 1 कर दो। then 1 2 1 2 3 3 5. अब हमको देखो ये पैटर्न प्रिंट करना है। सो यू सी ऑल द रोज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. First row has 1 element, second row has 2 element, third row has 3 element, fourth has 4, fifth has 5 elements. So सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम पब्लिक क्लास रिवर्स पैटर्न, और यहाँ पे हम केवल पैटर्न, ओके रिवर्स पैटर्न ही रहने दो। देन हमने मेन फंक्शन लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. Then we will start the loop for int I, क्योंकि 5 रोज हैं इसलिए हमने I की वैल्यू चलाई है 1 से 5 तक। हाँ आउटर लूप काउंट करता है नंबर ऑफ रोज को, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना आउटर लूप चलेगा। 5 रो हैं तो आउटर लूप 1 to 5। प्रभु जी यस, 1 कर दो जे को। 2 बजे तक तो है ना, नेट छोड़ने के लिए नेट छोड़ना है ना इसमें। 50% बहुत है, नेट छोड़ना हो गया 50% खत्म। हु इज आस्किंग? कोई पूछ रहा है? अपने ऑडियो म्यूट कर दो, देयर इज सम डिस्टरबेंस फ्रॉम समबडी। लिखा है हाँ, 50 रुपए का रिचार्ज करवाना। व्हाट इज द